Hello students, welcome back to my channel Let's Fly High. So right now I'm starting in this video I will be starting with chapter number 5, that is physical and chemical changes. I hope you are liking my all the videos, so please subscribe them and like them. I'm going to make more videos on this NSO class 7. So today it's chapter 5, then we will move on to chapter 6. So let's start with the practice questions. What the first question says. Question number 1 is, which of the following statement is correct? Okay, what are the statements? Manure formation from leaves is a chemical change. Okay, chemically iron and rust are same. Okay, chemically iron and rust are same. Then the third option is, breakdown of ozone to the oxygen is a chemical change. And fourth is, zinc coated iron pipes rust easily. So when we go through these statements, we know that there are the two correct statements. That is, the manure formation from the leaves is the chemical change. We all know that. And the second question is second statement is, chemically iron and rust are same. No, the iron and rust are chemically different. And the third statement says breakdown of ozone to the oxygen is a chemical change. Yes, this is the correct line. And the next statement is, zinc coated iron pipes rust easily. But we know that the zinc coated iron pipes do not rust. So from this we find that since we have to find the correct statement, so the option B will be the correct option, because our statement number 1 and statement number 3 is the correct, and the statement number 2 and 4 is incorrect statement. ठीक है. Now the second question is, match the columns and we have to find the correct code from it. The column says PQRS and the column 1 has burning magnesium ribbon, then reaction of iron with copper sulfate solution, then mixing baking soda and vinegar and charring of sugar. And column 2 says displacement reaction, decomposition reaction and synthesis reaction and double displacement reaction. Okay, now what the burning of the magnesium ribbon is the synthesis reaction. Yes. Then reaction of the iron with the copper sulfate solution, we know it is the displacement reaction. And the mixing baking soda and vinegar, when we mix baking soda with the vinegar, we find this double displacement reaction occurs, and the charring of the sugar is the decomposition reaction. So this is the code. So code will be P is 2 3, this one. The option number B will be the correct option. Next we move to the question number 3. Identify, in this question we have to identify W, X, Y and Z. W is a physical change in which heat is evolved. ऐसा physical change जिसमें heat evolve होती है, heat निकलती है. X is a chemical change in which light is produced. एक ऐसा chemical change जिसमें light produce होती है. Y says a chemical change in which sound is produced. एक ऐसा chemical change जिसमें sound produce होती है. And Z is a physical change in which the heat is absorbed. जहाँ पर
हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जब फिजिकल चेंज होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में अगर ये सारे प्रोसेसेस हैं और इन सबको हम क्या बोलेंगे, WXYZ। तो W क्या है, W हमारे जिसमें एक फिजिकल चेंज जिसमें हीट इवॉल्व होती है, इसका मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। अ केमिकल चेंज जिसमें लाइट प्रोड्यूस होती है, उसमें क्या होता है, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। फिर जब हम क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं तो उसमें केमिकल चेंज की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसका फिजिकल चेंज होता है और हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, इसलिए फिजिकल चेंज होता है। सो द आंसर विल बी द ऑप्शन डी। नाउ वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। Observe the given figure carefully. This is the figure that this is X. X is the some gas, and there in this test tube there is zinc granules, and along with this we have dilute sulfuric acid. Okay, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और गैस एक्स जो है वो रिलीज हो रही है। अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। क्या है, there are 4 statements. First statement is a chemical change is taking place. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस X is the sulfur dioxide. Okay. Then burning matchstick will get extinguished, and D is the test tube feels warm after the change. अब इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, अब देखो, जब जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करते हैं, वे डाइल्यूट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज होती है विच एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग मैच स्टिक। सो तो जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है, तो इसलिए जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वो गर्म होती है। तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब फील्स वार्म आफ्टर द चेंज, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड मैच स्टिक विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। गैस एक्स इज द सल्फर ऑक्साइड, नो, गैस एक्स विल बी द हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड द केमिकल रिएक्शन तो चेंज हो ही रहा है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वी मूव टू द question number 5. Which of the following represents double displacement reaction? Okay, so the first is reaction between potassium iodide and lead nitrate, reaction between barium chloride and sodium sulfate, the reaction between magnesium and water, and the reaction between silver nitrate and sodium chloride. अब इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स में हमें पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं। देखो, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट में रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, करेक्ट। एंड द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में भी हो रही है, एंड सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड में भी हो रही है। तो जो रिएक्शन है मैग्नीशियम एंड वाटर में, दैट इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अगेन देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, वी हैव टू फाइंड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। During the displacement reaction, a less reactive element gets displaced from its solution by a more reactive element. Okay. तो यही तो होता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है सॉल्यूशन में से, किसके अगेंस्ट द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, उसको डिस्प्लेस कर देता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज rusting is slower in coastal region as the moisture content in the air is less. This is the wrong statement. Why? Because rusting faster होती है coastal region में, क्योंकि वहाँ पे जो moisture का content होता है वो air में बहुत high होता है। जब air में पानी ज़्यादा होगा तो rusting भी ज़्यादा होगा। So statement second क्या है, ये तो wrong है।
नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एटम्स ब्रेक देयर लिंक्स एंड फॉर्म न्यू लिंक्स। अब अगर हम ये देखते हैं तो ये भी ठीक है, क्योंकि केमिकल चेंज जब होता है तो एटम्स ब्रेक करते हैं और लिंक करते हैं और न्यू लिंक्स बन जाते हैं। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज हीटिंग ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जब हम हीटिंग करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इट इज अ केमिकल चेंज एज इट डिकम्पोजेज इनटू द, वो किस में चेंज हो जाता है, इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड। जब हम उसको हीट करते हैं तो दो में डिवाइड होता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो these two statements are wrong, so the answer will be second and fourth. So answer will be the B option. Next, question number 7th is Shruti mixed iron fillings and sulfur powder in a china dish. Iron filling और sulfur powder उसको उसने मिक्स कर दिया श्रुति ने, एंड कीप इट असाइड और थोड़ी देर के लिए रख दिया। दिस इज द प्रोसेस 1. नाउ सोनाली मिक्स्ड आयरन फिलिंग्स, और सोनाली ने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को लिया एंड सल्फर को लिया, सल्फर और आयरन फिलिंग्स को लिया और चाइना डिश में रखा और उसको हीट किया। दिस इज द प्रोसेस 2. इसमें उसने हीट किया, उसमें उसने थोड़े टाइम के लिए रख दिया। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? द प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 बोथ कैन बी रिवर्स्ड. No new substance will be formed in both processes. No new substance will be formed in process 1, while in process 2 a new substance will be formed. And the option D is new substance will be formed in both the processes. अच्छा, अब now we know, हमें पता है कि जब हम आयरन फिलिंग्स को मिक्स करते हैं सल्फर पाउडर के साथ तो कोई सब्सटेंस नहीं बनता. ओके, सो नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड. एंड लेकिन व्हेन द आयरन फिलिंग्स एंड द सल्फर पाउडर आर हीटेड टुगेदर तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है. जब न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरियस सल्फाइड. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में हीटिंग नहीं हुई है, ऐसे ही रख दिया है तो कोई उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना. लेकिन जब हमने उसको हीट कर दिया, सोनाली ने उसको हीट किया, तो फिर हमें एक नया सब्सटेंस मिला जो होता है फेरियस सल्फाइड. इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ 8th क्वेश्चन इज स्टडी द वेन डायग्राम. अ वेन डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ है. इसमें क्या है, दो है, दो ऑप्शंस है. एक है फिजिकल चेंज हो रहा है दिस, एंड एक है केमिकल चेंज हो रहा है. फिजिकल चेंज इज 1, केमिकल चेंज इज 2, एंड द कॉमन बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज 3. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम इट. अब व्हाट आर द ऑप्शंस? बर्निंग ऑफ वुड रिप्रेजेंट्स पॉइंट 2. पॉइंट 2 क्या है? बर्निंग ऑफ वुड रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज. Okay, this is the correct statement. Then option B क्या है? Burning of LPG in kitchen represents 0.3. मतलब LPG जो गैस होती है जो किचन में हम यूज करते हैं वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करती है इन दोनों का चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज बोथ. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ऑप्शन. बर्निंग ऑफ अ पेपर रिप्रेजेंट्स 0.1. अब अगर पेपर को हम बर्न करते हैं तो फिजिकल चेंज होता है? नो, व्हेन द पेपर इज बर्न्ड इट इज अ केमिकल चेंज. सो इट विल बी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली. एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, क्या चेंजेस है एट द टॉप, देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, x एंड y.
ओके एंड क्या है, श्रेडिंग ऑफ पेपर, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लावरिंग ऑफ बड, बर्स्टिंग ऑफ बलून, स्लेकिंग ऑफ लाइम। अब इसमें से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को। अब एक्स और वाई इन्होंने क्या दिया हुआ है, फिजिकल है या फिजिकल चेंज है या रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है, नो। फिर केमिकल है या इरिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल है या इरिवर्सिबल चेंज है, नो। देन फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज है, करेक्ट। श्रेडिंग ऑफ अ पेपर एंड बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, उसका फिजिकली भी चेंज हो रहा है और इरिवर्सिबल भी हो रहा है। हम वापस पेपर नहीं बना सकते और वापस बलून नहीं बना सकते। एंड इसमें क्या है, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। फ्लावरिंग ऑफ द बर्ड में केमिकल चेंज होके वो बड़ा होगा और स्लेकिंग ऑफ द लाइन में ही इरिवर्सिबल चेंज है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 10th क्वेश्चन इज राशि हैज क्लासिफाइड, राशि ने कुछ चेंजेस क्लासिफाइड किए हुए हैं, वो जो उसने, एंड इट दे आर शोन इन द टेबल। अब हमें क्या करना है, इसमें चेंजेस क्या है, ब्राउनिंग ऑफ स्लाइस्ड ब्रिंजल, और उसका क्या चेंज हुआ है, फिजिकल और इरिवर्सिबल चेंज हुआ है। उसने जो ब्रिंजल है उसको ब्राउनिंग किया है, उसको ब्राउन कन्वर्ट हुआ है, तो उसने उसको डाला है, फिजिकल चेंज हो रहा है और इसका इरिवर्सिबल हो रहा है। फिर उसने डाला है गेटिंग प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो उसको भी इसने बोला है फिजिकल है और रिवर्सिबल है। बेकिंग ऑफ अ केक, शी हैज placed it in chemical and reversible change. Respiration in chemical and irreversible, and making sugar solution is physical and reversible change. So the changes classified correctly are, अब जो changes she has done इसमें से कुछ correctly classified किया। अब जैसे browning of sliced brinjal है, that is not a physical change, that is the chemical, and this is the chemical and irreversible change, so this is the wrong classification. And this is the correct one. Then baking of the cake, baking of the cake में क्या है, it is a chemical change but this is the irreversible, this is also the wrong one. No, it is not reversible, it is irreversible. आप वापस केक से उसको फ्लोर नहीं बना सकते। सो द ऑप्शन 1 and 2 एंड वी सी ऑप्शन 1 and 2 क्या है इसमें, तो जो करेक्टली किया है वो क्या किया है उन्होंने, 2nd, 4th और 5th। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द 11th क्वेश्चन। अ फ्यू चेंजेस आर लिस्टेड एज, कुछ फ्यू चेंजेस हैं लिस्टेड किए हैं, dissolution of glucose, photosynthesis, adding bathroom acid to water, burning of magnesium, slaking of lime, and respiration. Which of the following represents the correct classification of these changes? अब इसमें से हमें बताना है कि correct जो classification की है वो correct कौन सी है। अब हम देखते हैं कि इसकी classification correct कैसे है। अब हम लोगों को पता है dissolution of glucose क्या होता है, it is एंडो, ठीक है, इट इज एंडो। देन फोटोस, अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसको, इट इज एंडो। एंड फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। देन एडिंग बाथरूम एसिड टू द वाटर, this one is exothermic. Then burning of magnesium, it is also exothermic. Then slaking of lime, that is also exothermic. And respiration, that is also exothermic. So ये सारे एक्सो हैं और ऊपर के 2 एंडो हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हुआ this is the change. So D is the correct option. Exposed surface of a sliced brinjal turns black due to
जो ब्रिंजल होता है जब हम उसको एक्सपोज करते हैं, जब हम काटते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है. हैव यू सीन? आई डोंट नो यू हैवंट सीन, बट गो इनटू अ किचन एंड आप उसको स्लाइस करके देखना, वो ब्लैक हो जाएगा. बिकॉज एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है एंड अ फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज होता है उसमें, और एन इरिवर्सिबल चेंज होता है उसमें, या फिर बोथ ए और सी होता है. तो करेक्ट इज डी ऑप्शन, ए एंड सी होता है. एक तो वो दैट इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसको कट करते ही ब्लैक हो जाता है. Okay, now the 13th question says, which of the following chemical changes will lead to evolution of a gas which can turn lime water milky? ठीक है, अब लाइम वाटर मिल्की कैसे होता है? पुटिंग मार्बल चिप्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हम मार्बल चिप्स को हाइड्रोक्लोरिक HCl में डालते हैं तो क्या होता है? तब इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड and carbon dioxide and water. We get this statement. Okay. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. अब नेक्स्ट क्या है? सो दिस is the correct one. Mixing calcium carbonate and sulfuric acid. अब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है. देन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वो उसको वाटर को, लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रांगली. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो अगेन व्हाट वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगेन हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है यहाँ से, तो फिर वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा. नाउ पुटिंग जिंक ग्रैन्यूल्स इन HCl. अब जब हम जिंक को HCl के साथ डाल देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें क्या चाहिए था कि लाइम वाटर मिल्की कैसे होगा? तो द आंसर, फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो आंसर विल बी द बी ऑप्शन. 14 says observe the given experimental setup. एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें अमोनियम क्लोराइड है और हम उसको हीट कर रहे हैं. तो क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑब्जर्वेशन. अब हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है कि अमोनियम क्लोराइड forms white vapors on heating which get deposit on the upper cooler part of the test tube. जब हम we all know that अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें वाइट वेपर्स मिलते हैं जब हम उसको हीट करते हैं, जो डिपॉजिट हो जाते हैं जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी अपर पार्ट पे जब हम उसको कूल कर देते हैं. तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन. Okay, now we move to the 15th question. Match the column and select the correct options from the given code. हमें कॉलम दिए हुए हैं. What is it? Sodium bicarbonate, acetic acid, aluminum chloride, sodium chloride and nitric acid. और कॉलम सेकेंड 2 में क्या दिया हुआ है? उनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. तो मैच करते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3. एसिटिक एसिड क्या होता है? CHCOOH. एल्युमिनियम क्लोराइड इज AlCl3. सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्या होता है? Na. क्लोराइड इज Cl, NaCl. नाइट्रिक एसिड क्या होता है? NHO3. So the correct answer will be option number D. So these were the 15 practice questions. Now we will doing the next 5 achievers question. I hope you are liking my video. Please
So please kindly subscribe it and click on the like button so that I can keep on making more and more practice question videos for you. Okay, now the 16th question is, Rubina has arranged the following experimental set up to study the process of rusting. So 1, 2, 3 are the tubes. इन फर्स्ट ट्यूब में क्या है, ऊपर ड्राई एयर हो रहा है एंड इसमें उसने क्या डाला है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस आयरन नेल है. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या है, बॉइल्ड वाटर है और उसके अंदर आयरन नेल है एंड ऑयल है, ऑयल ऊपर है. फिर थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या है, टैप वाटर है एंड आयरन नेल्स है. तो शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द गिवन टेबल. अब उसने ये 3 टेस्ट ट्यूब्स में एक्सपेरिमेंट किया एंड उसने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया है. अब हम देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है. टेस्ट ट्यूब 1, 2 एंड 3. टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल नो, वाटर अवेलेबल नो, रस्टिंग अकर्स नो. टेस्ट ट्यूब 2 में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल येस, वाटर अवेलेबल येस, रस्टिंग अकर्स येस. टेस्ट ट्यूब 3 में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल नो, वाटर अवेलेबल येस, रस्टिंग अकर्स नो. सो अब वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन. तो इसमें जब हमें ढूंढना है कि इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या है. चलो टेस्ट ट्यूब 1 देखते हैं. टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एंड क्योंकि वहां पे ड्राई एयर है एंड वाटर नॉट अवेलेबल. सो उसने क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए और उसने नो लिखा है, तो दिस इज द इनकरेक्ट वन. नाउ टेस्ट ट्यूब 2 में क्या है, वाटर शुड बी अवेलेबल एंड ऑक्सीजन शुड नॉट बी अवेलेबल, बट शी हैज रिटन ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल. सो दिस इज द रॉन्ग वन. एंड थर्ड में क्या है, टेस्ट ट्यूब 3 में क्या है, बोथ ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगी एंड वाटर नॉट अवेलेबल होगा, लेकिन इसने ये ऑब्जर्वेशन फिर उल्टा लिख दिया है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. उसकी ये तीनों जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये तीनों इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वी मूव टू द 17th क्वेश्चन. ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फिगर में क्या दिया हुआ है, एक मैग्नीशियम रिबन को हीट कर रहे हैं और क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो वाटर प्लस एशेस बन रहा है. फिर उसका सॉल्यूशन हम लेके उसको लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं. तो जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर पे डाला और ब्लू लिटमस पेपर पे डाला. अब इसकी हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame. We have to find the correct statement. ठीक है, तो जो एशेज होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम बर्न करते हैं, जो एशेज द एशेज फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड and the solution formed is magnesium hydroxide, so which is basic in the nature and turns red litmus to blue. तो जो हमारा red litmus है वो blue हो जाता है. तो इसमें जो है हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. The ash formed is powdered magnesium only. No, this is not the correct statement. Solution formed is MgO. No, the solution जो हमारा formed होगा, जो solution हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, magnesium hydroxide. So this is also wrong. This is incorrect and this is incorrect. And the जो solution हमारा turn करता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, ना कि ब्लू को रेड. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द ऑप्शन विल बी द ए विल बी द करेक्ट वन. 18th क्वेश्चन में एक पैसेज दिया हुआ है, वी शुड रीड इट एंड वी हैव टू कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स इन इट. रस्टिंग ऑफ द आयरन इज
a dash process which requires the presence of water, oxygen and electrolyte. Relative humidity of over dash is sufficient for rusting to occur. If the oxygen is present in the lesser quantity, dash is formed, and if both water and oxygen are adequately available, dash is formed. तो जब हम रस्टिंग, आयरन का रस्टिंग होता है तो क्या बनता है? इट रिक्वायर्स वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमें प्रेजेंस ऑफ वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए एंड इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए. तो फर्स्ट ये कौन सा प्रोसेस हुआ? इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, आई थिंक ये वाला ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ओवर दिस इज, कितनी ह्यूमिडिटी हमें चाहिए उसको रस्टिंग के लिए? तो हमें ऑलमोस्ट 50% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है. इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी लेस होती है तो क्या बनता है? तो FeOH बनता है, FeOH2 बनता है. एंड इफ बोथ द वाटर और ऑक्सीजन की क्वांटिटी एडिक्वेटली अवेलेबल है तो क्या बनता है? तो बनता है Fe2O3X H2O. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. 19th क्वेश्चन में हमें दो कोड्स को वापस मैच करना है, कॉलम्स को. कॉलम 1 में रिएक्टेंट्स है और कॉलम 2 में जो उसका प्रोडक्ट बनता है रिएक्ट होके वो देखना है. तो लेट्स सी, Mg+O2 करते हैं. MgO2 होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, दिस इज रॉन्ग. MgO2 होता है तो हमें क्या मिलता है? MgO. अब फिर CaOH2 प्लस CO2 होता है तो हमें मिलता है CaO3. और भी होता है प्लस H2O, लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही दिया है. फिर Zn प्लस FeSO4 होता है तो हमें रिएक्शंस के बाद मिलता है ZnSO4 प्लस Fe. और Fe प्लस O2 प्लस H2O होता है तो रिएक्शंस के बाद हमें मिलता है Fe2O3X H2O. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कोड है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इस कोड को अगर हम टैली करेंगे तो ये होगा ऑप्शन बी. 20th क्वेश्चन सेज अ फ्यू प्रोसेसेस आर लिस्टेड. कुछ प्रोसेसेस लिस्ट किए हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड का डिसोल्यूशन नहीं हुआ है वाटर में, एंड डिकम्पोजिशन हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक पाउडर को ऐड किया हमने कॉपर सल्फेट में. नाउ हमें इसमें से इनकरेक्ट प्रोसेस निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोसेस 2 and 3 आर एंडोथर्मिक. दिस इज द करेक्ट. प्रोसेस 3 मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज the result in this result गैस का evolution होता है. और process 4 results in the change in the color of solution. और process 4 क्या था? addition of zinc powder को अगर हम copper sulfate में ऐड करते हैं तो कलर चेंज होता है solution में. this is also the correct one. तो process 4th addition of zinc powder to copper sulfate is an example of double decomposition reaction. No, this is the wrong answer. This is the wrong statement. And process 1 is exothermic. Yes, rusting of iron is exothermic. ठीक है, तो इसका आंसर होगा C. Now let's move to the few practice questions from year 2021. Next 5 questions. I hope you are practicing a lot with me and your all the doubts
are getting clear up. So let's start with question number 1. Match the column 1 and column 2. Column 1 has decaying of fallen leaves, alloying, shredding of paper, crystallization. Column 2 have prevention of rusting, purification of solids, chemical change and physical change. तो इसको मैच करते हैं. डिकेइंग ऑफ फॉलन लीव्स क्या होता है? ऑब्वियसली केमिकल चेंज. एलॉइंग क्या होता है? रस्टिंग को प्रिवेंट करता है. एलॉइंग क्या होता है? किसी डिपॉजिट करना किसी और मेथड, डिपोजिशन ऑफ अनदर मेटल, किसी और मेटल को डिपॉजिट करना ऑन द आयरन सरफेस ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके रस्टिंग से. श्रेडिंग ऑफ द पेपर क्या होता है? पेपर को श्रेड करते हैं तो उसका फिजिकल चेंज होता है, उसमें केमिकल चेंज तो होता ही नहीं. श्रेड मतलब उसको छोटा छोटा काट देते हैं, श्रेड कर देते हैं, तो ये हो गया उसका फिजिकल चेंज हो रहा है. क्रिस्टलाइजेशन वो तो केमिकल चेंज होता ही है. जो उसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं जब हम फॉर्म करते हैं लार्ज क्रिस्टल्स छोटे फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस में से हम लार्ज क्रिस्टल्स बनाते हैं, उसको हम सॉलिड्स को वैसे प्यूरिफाई करते हैं. तो इसका आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया हुआ है. द पोर्शन ऑफ द शिप विल रस्ट द फास्ट. अब हमें इसमें निकालना है कि शिप का कौन सा पोर्शन है, और पी रस्ट जल्दी होगा या क्यू जल्दी रस्ट होगा या आर जल्दी रस्ट होगा. अब इसका आंसर है, अब देखते हैं आर. अगर पी जल्दी, पी बहुत ऊपर है, क्यू नीचे है, आर will be the correct option. Why? Because for the rusting के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रस्टिंग प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए. सो यहाँ पर उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर होता है कब? ह्यूमिड एयर में. तो द पोर्शन ऑफ अ शिप जो हमें डिनोट किया हुआ है आर में, वो प्रॉपर कांटेक्ट में है, एयर के भी कांटेक्ट में और मॉइस्चर के भी, एज कंपेयर टू पी और क्यू. पी और क्यू थोड़ा सा दूर है और इसलिए आर फास्ट रस्ट करेगा. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक 2 टेस्ट ट्यूब्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें निकालना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. फर्स्ट में क्या हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब को हम हीट कर रहे हैं जिसमें ब्लू कलर्ड सॉल्ट है, जो है उस सॉल्ट का नाम है W, और एक है हम उसको हीट नहीं कर रहे और वाइट कलर सॉल्ट है और उसका नाम है Y, और इनका जो रिएक्शन होके X बन रहा है और जो इसमें से आउटपुट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, वो Z हो रहा है, जो छोटे छोटे वहां पे ऊपर फॉर्म हो रहे हैं कॉर्नर्स पे ट्यूब के. तो इसमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है. W इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाइल X इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. तो W क्या है, इट इज अ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इट इज ब्लू, मतलब वो ब्लू है, ओके, इट इज इन ब्लू कलर. फिर Y क्या है, ये रहा Y, वाइट कलर्ड सॉल्ट. जब उसमें हीट करके जो रिएक्शन हुई है, उसके बाद हमें मिला है Z और Y. तो जो Y है, वाइट कलर्ड सॉल्ट, वो क्या है, इट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. वो क्या है, वाइट कलर का है. तो W इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. तो दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि W क्या है, कॉपर सल्फेट है, और जो Y है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है. Z रिप्रेजेंट वेपर्स ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. नो, Z क्या है, Z है वाटर वेपर्स जो हमें क्रिस्टलाइजेशन हुई है उससे ऑब्टेन हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो अब ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन विच ऑफ द गिवन रिएक्शंस इवोल्यूशन ऑफ गैस विल नॉट टेक प्लेस. इसमें गैस इवोल्व नहीं होगी जब हम ये वाले रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होंगे. Zn प्लस H2SO4 जब ये डाइल्यूट होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ZnSO4 प्लस H2. तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? गैस मिल रहा है. इसमें हमें गैस मिल रहा है. ओके. फिर CaCO3 प्लस 2HCl होता है तो हमें क्या मिलता है? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. तो इसमें अगेन हमें CO2 गैस मिल रहा है. फिर CuCO3 को हम हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग हमें क्या मिलता है? CuO प्लस CO2. कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है तो इसमें भी गैस मिलता है. तो जो ऑप्शन डी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर जब हम Zn को CuSO4 के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? ZnSO4 प्लस Cu. तो इसमें गैस नहीं इन्वॉल्व होता दिस इक्वेशन में. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन in this question. Now the last question is study the given. There is figure is being given over here and we have to fill the blanks, appropriate blank. इसमें क्या है? आयरन नेल्स हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और फिर ऊपर एक थ्रेड जा रहा है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक थ्रेड डाला हुआ है जो आयरन नेल सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है. ये हमारा प्रोसेस 1 है. प्रोसेस 2 में क्या है? टेस्ट ट्यूब के अंदर विनेगर है और बेकिंग सोडा की हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं. थर्ड में क्या है? आयरन नेल है एक सॉल्यूशन के अंदर. अब क्या है? क्वेश्चंस क्या है? अ डैश चेंज टेक प्लेस इन फिगर 1 एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू डैश इन फिगर 2. अच्छा, पहले फर्स्ट करते हैं. तो जो हमारा क्या चेंज हो रहा है? हम फिगर 1 में ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो कलर हमारा चेंज किस में हो रहा है? वो हो रहा है डैश में. तो इसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है. दिस इज द केमिकल चेंज. अब देखते हैं ग्रीन बनता है या ब्राउन बनता है. क्यों नहीं? it will be since there is a chemical change between Fe plus CuSO4. CuSO4 ब्लू कलर का ब्लू होता है. फिर उसमें जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो FeSO4 केमिकल चेंज होता है और बनता है FeSO4 जिसकी वजह से हमें ग्रीन कलर मिलता है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस. नाउ इन फिगर 2 में क्या है? डैश इज द रिएक्शन अकर्स एंड CO2 गैस इज इन्वॉल्व. इसमें जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा पुट करते हैं तो क्या होता है? कौन सी रिएक्शन अकर होती है जिसमें हमें CO2 गैस इवॉल्व होती है? तो इसमें क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन होता है. एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या है? जब आयरन नेल्स को हम डिपॉजिट करते हैं मिक्सचर के अंदर तो क्या होता है? रस्ट फॉर्म होता है जो वो ह्यूमिड एयर में एक्सपोज होते हैं. तो फॉर्मूला और रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O. और ये क्या नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है. तो यहां पर ऑप्शन होगा Fe2O3XH2O. और व्हाट इज द फिगर 3 का नेचर क्या बना? वो बना बेसिक नेचर. So that's it from my side in this chapter. I hope you are very much clear with the concept of this now and you can easily solve these problems from this chapter number 5. Now please wait for my video on the chapter number 6, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. I will be uploading it in few hours. Till then, please keep on practicing because practice makes man perfect. And do please subscribe my videos. Thank you.